I was thinking of sharing about how God is building the church. और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर इस बात को बांटो कि कैसे परमेश्वर अपने कलीसिया का निर्माण या अपने देह का निर्माण कर रहा है। So I was just thinking these days about how much importance Jesus had given, especially during his last days, in the building of church. और मैं इस बात को सोच रहा था कि इन अंतिम दिनों में यीशु ने उसकी कलीसिया का निर्माण करने की बात पर कितना अधिक जोर दिया है। And means when Jesus was about to hang on the cross, we know that his last sermon to his disciples that we read in John 14, 15, 16. और यूहन्ना उसके 14, 15, 16 अध्याय में क्रूसित होने से पहले यीशु ने अपने शिष्यों को जो उपदेश दिया उसको हम जानते हैं। And we see his burden in his heart during the prayer in John chapter 17. और हम उसको यूहन्ना 17 अध्याय के अंदर उसके हृदय में जो बोझ है उसको हम देख पाते हैं। And especially he was mainly focused on one thing, that is the church should be one. और उसका उद्देश्य, उसका ध्येय यही था कि उसकी कलीसिया जो है वो एक बने। So we can I was just thinking about what is the meaning of the word church. और मैं कलीसिया जो है उस शब्द के बारे में सोच रहा था कि उसका अर्थ क्या है। The meaning of the word church is some people who are taken out of, set apart from the world. और कलीसिया इसका अर्थ ये है कि संसार से कुछ लोगों को अलग करके जब बुलाया जाता है। And they are set apart for Christ and for him. और वो यीशु मसीह के लिए, उसके लिए ये लोग अलग किए जाते हैं। So that is the meaning of church. और ये कलीसिया का अर्थ है। So before I get united with the church, the main thing which I need to have in my life is a separation from the world. और कलीसिया में एक होने से पहले एक चीज जो मेरे जीवन में होनी चाहिए वो ये है कि संसार से एक अलगाव या अलग होना चाहिए। That is why we read in John chapter 17 verse 6, where Jesus says, I have manifested your name to the men who you gave me out of the world. They were yours and you gave them to me and they have kept your word. और यूहन्ना 17 उसके 6 वचन में लिखा है कि मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत से मुझे दिया, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। Then again Jesus says in verse 15 and 16, I do not ask to take them out of the world, but to keep them from the evil one. They are not of the world, as I am not of the world. और 15-16 वचन में कहता है यीशु, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। The next verse is, sanctify them in the truth, your word is truth. और 17 वचन में कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। And the word sanctify here means set them apart from the world and set them for the word of God. और यहाँ पर पवित्र या उनको शुद्ध करने का अर्थ यह है कि उन्हें संसार से पूरी रीति से अलग करना। As you sent me into the world, I also have sent them into the world. और आगे कहता है, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। And verse 19 says, for their sakes I sanctify myself, that they themselves also may be sanctified in the truth. और आगे कहता है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। So here it says Jesus is sanctifying himself. और यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह जो अपने आप को पवित्र या शुद्ध करता है। So here that pavitra word is not correct because Jesus does not have anything to sanctify himself of. और ये यहाँ पर वो पवित्र या अपने आप को शुद्ध करने का जो सही वो शब्द नहीं, उसे जरूरत नहीं थी अपने आप को पवित्र करने की। Because Jesus has set himself apart for us. Jesus has set himself apart for us. और वो हमारे लिए कि हमको वो अलग कर सके, इसलिए वो इस प्रकार कहता है। No, he set himself apart for us. That is, he came from the Father into this world for me. और वो मेरे लिए जो है ये पिता से अलग होकर वो मेरे लिए संसार के अंदर आया। So that is what is talking about in this verse. और ये वचन में इस प्रकार वो बताता है, Like Jesus set himself apart for me,
I need to set myself apart for Jesus. और यीशु मसीह जो है हमारे लिए अलग किया गया पिता से, तो मुझे भी उससे एक होने के लिए संसार से अपने आप को अलग करना है। That is how I can be part of the church. और उसी प्रकार से मैं उसकी कलीसिया का एक भाग बन सकता हूँ। And in Ephesians chapter 5, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय verse 32, it says, This mystery is great, but I am speaking with reference to Christ and the church. और यह भेद तो बड़ा है, 32 वचन, यह भेद तो बड़ा है पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। That means the mystery of church is very great. इसका मतलब कलीसिया का जो रहस्य जो है, जो भेद जो है, वो बहुत ही बड़ा है। I cannot understand the mystery of the church by my own clever ideas. और अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुर विचारों से मैं कलीसिया के अर्थ को, उस भेद को नहीं जान सकता। I need God to reveal what is the church and how I can be part of the church. और वो परमेश्वर ही है जो मुझे बता सकता है कि कलीसिया क्या क्या अर्थ है और उस कलीसिया का मैं कैसे भाग बन सकता हूँ। And in the previous verse it says, man shall leave his father and mother and be joined to his wife. और पहले के वचन 31 वचन में कहता है, इस कारण पुरुष माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। So that is what it's talking about, a mystery, that there should be a leaving from something to be joined to the church. और यही एक रहस्य को बताता है कि कुछ चीज को मिला रहने के लिए, एक होने के लिए हमें उससे, दूसरी चीजों से अलग होना है। In the same way, like Jesus had to separate himself from the Father so that he can be sanctified for the church. और जिस प्रकार यीशु मसीह पिता से उसे अलग होना था, क्योंकि उसके द्वारा वो कलीसिया को पवित्र या शुद्ध बना सके। In verse 25 it says, just as Christ also loved the church and gave himself up for her. और जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. और कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, so that he might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless. और 27 वचन में कहता है कि और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। So we understand that Jesus gave himself for the church. और यहाँ पर हम इस बात को समझते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। So that is what we understand, that something very precious and very glorious God saw in the church. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर कुछ बहुत ही बहुमूल्य चीज को देखा। And we need to also ask God to open our hearts so that we can understand that precious church which God wants to build. और हम इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रभु हमारे हृदय को इस प्रकार खोले ताकि जो मूल्यवान कलीसिया परमेश्वर बनाना चाहता है उसको हम देख सके। Jesus spoke about the church first in Matthew chapter 16. और मत्ती 16 अध्याय में सबसे पहले यीशु मसीह ने कलीसिया के बारे में बात की। We read in Matthew 16 verse 16, Simon Peter answered, "You are Christ, the Son of the living God." और उसके 16 वचन में समौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। And Jesus said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven." और वचन 17, यीशु ने उसको उत्तर दिया है, समौन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में यह बात तुझ पर प्रकट की है। Then Jesus said these words, "I also say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it." और आगे कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। So Jesus asked them, "Who do you say that I am?" और यीशु मसीह यहाँ पर उनको प्रश्न पूछता है कि आप क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूं? And Peter responded saying, "You are Christ, the Son of the living God." और समौन पतरस जो उत्तर देता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। So at that time Jesus said that you are blessed because Father has revealed it to you. और वो यीशु पतरस से कहता है कि तू धन्य है, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता ने ये बात तुझ पर प्रकट की है। And Jesus then said, "It is on this revelation that God will build his church."
और यीशु कहता है कि इस प्रकाशन के ऊपर ही वो अपनी कलीसिया या देह को निर्माण करेगा। That means the focus of the church is Christ, the Son of the living God. इसका मतलब कलीसिया का जो पूरा ध्येय या उद्देश्य जो होता है, पूरा ध्यान वो यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर का पुत्र है वो होता है। And if I shift my focus from that place to anywhere else, I am not building the real church of Christ. और यदि मैं यीशु मसीह को छोड़कर और किसी बात पर अपने ध्यान को लगाता हूं तो मैं एक सच्ची मसीह की कलीसिया का निर्माण नहीं कर रहा हूं। I was just thinking some of the things which we can be sidetracked into from Christ. और मैं कुछ बातों के बारे में सोच रहा था जो बातें हमें मसीह पर ध्यान करने से हमारे मन को भंग कर सकती है या विचलित कर सकती है। And that is found in Colossians chapter 2. और वो पाया जाता है कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय। We read in verse 8, sorry. उसके 8 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। It says, see to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception, according to the tradition of men, according to the elementary principles of the world, rather than according to Christ. और वो कहता है चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहर न कर ले जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। And in verse 18 again it says, let no one keep defrauding you of your prize by delighting in self-abasement and the worship of angels, taking a stand on visions he has seen. और 18 वचन में कहता है कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। So here it talks about delighting in self-abasement. और यहाँ पे लिखा है कि स्वयं की बातों के ऊपर या अपनी समझ के ऊपर जो है वो फूलना या उसके ऊपर डींगे मारना। No, self-abasement means I have a form of humility which is not a true humility. और वहां पर एक दिखावा करने जैसा होता है कि जैसे मैं नम्र नहीं होता हूं लेकिन मैं एक नम्र होने का लोगों के सामने दिखावा करता हूं। And then it says about worship of angels. और यहाँ पे लिखा है कि स्वर्गदूतों की आराधना के बारे में। And angels means I am more attached to a messenger or somebody who is speaking the word rather than my attachment to Christ. और यहाँ पे स्वर्गदूत उसको दिखाता है कि मैं मसीह से बढ़कर जो व्यक्ति संदेश को ला रहा है, जो संदेश वाहक है, उसकी ओर आकर्षित होते चला जाता हूं मसीह के होने के बजाय। Then it talks about visions and dreams which we can have. और यहाँ पे फिर दर्शन और स्वप्न जो हमें होते हैं उसके बारे में लिखा है। We can also be sidetracked to looking into always thinking about visions, dreams and miracles instead of focusing on Christ. और हमारा मसीह के ऊपर ध्यान लगाने की बजाय हो सकता है कि कई बार हमारा ध्यान जो दर्शन है या स्वप्न है वो सारी बातों के ऊपर हमारा मन लगा रहे और वंचित हो हम। And verse 19 it says not holding fast to the head. और यहाँ पे लिखा है कि उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता। That means the head who is Christ, I am not attached to the head. इसका मतलब शिरोमणि जो सिर जो यहाँ पर यीशु मसीह को दिखाता है उसके साथ में नहीं लगा हुआ हूँ या नहीं जुड़ा हुआ हूँ। God's desire is that every member of the church should have direct connection to Christ. और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर एक देह का या कलीसिया का सदस्य यीशु मसीह के साथ पूरे डायरेक्ट उस जुड़ जाए उसको पूरी रीति से। And not through some person I have connection with Christ. और किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं यीशु मसीह के साथ जुड़ना। Because in the new covenant, from the smallest to the greatest, we can all know Christ. और नई वाचा के अंदर छोटे से लेके बड़ा व्यक्ति भी यीशु मसीह को जान सकता है। And that is how, because we don't come to God through any priest or someone. और इसी कारण हम किसी याजक या किसी मनुष्य के द्वारा हम यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं। We can come directly to God and we can have a direct connection with Him. हम पूरे सीधी रीति से यीशु मसीह के पास आ सकते हैं और एक सही संबंध उसके साथ हम सीधा संबंध रख सकते हैं। And verse 19 also says, from whom the entire body being supplied and held together by the joints and ligaments grows with a growth that is from God. और वहां लिखा है 19 वचन में आगे कि जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। So that is the way we can grow in Christ. और इसी प्रकार हम यीशु मसीह में बढ़ सकते हैं। And that is the way the whole body can be united. और इसी प्रकार जो सारी जो देह जो है वो एक हो सकती है। Not by artificially like
having some regulations and rules that everybody follows it. और एक बनावटी या दिखावे के लिए जो परंपरा या रीति रिवाज को कुछ नियम बना के हम उसका अनुसरण करने द्वारा नहीं, But everybody has a living connection with Christ and everybody is following what the head is saying. और हर एक यहाँ पर एक जीवित संबंध को यीशु मसीह के साथ उस सिर के साथ रखता है और वो जो कहता है उसका अनुसरण या पीछा करते हैं। Everybody has the true holiness and not a false holiness which they want to project. और हर एक व्यक्ति के अंदर एक सच्ची पवित्रता होगी, ये एक नकली पवित्रता या बनावटी नहीं जो वो अब बाहर दिखावा करना चाहते होंगे। And we will follow the true humility of Christ from our heart and not a humility which is shown here of a false humility. और यहाँ पर वे पूरी सच्चाई के साथ वो एक सही सच्ची नम्रता जो है वो दिखाने का प्रयास करेंगे, न कि एक झूठी नम्रता। So that is how a church can be built. और इसी प्रकार से कलीसिया का निर्माण हो सकता है। And then it says that in verse chapter 3 that seeking the things above where Christ is seated. Which was Chapter 3 verse 1. और कुलिसियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। And immediately after Jesus spoke about the church, he spoke about the cross. और तुरंत जब उसने कलीसिया के बारे में बोला उसके बाद तुरंत वो क्रूस के बारे में बात करता है। We can read that in Matthew chapter 16. वो मत्ती 16 अध्याय में इसको हम पढ़ सकते हैं। Verse 21. मत्ती 16 उसका 21 वचन। After he spoke about the church, he spoke in verse 21, from that time Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised on the third day. मत्ती 16:21 में उस समय से यीशु अपने चेलों से बताने लगा, मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं, प्राचीनों, प्रधान याजकों, शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। And Peter, who had a revelation of Christ, the Son of the living God, did not get a revelation of the crucified Christ. और पतरस जिसे जीवते ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह का प्रकाशन मिला था, उसको क्रूसित होने वाले यीशु मसीह का प्रकाशन नहीं मिला। He was happy with Christ, the Son of the living God. और वहां पे पतरस जो उसको प्रकाशन पहले मिला था, जो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है, उससे वो आनंदित था। When Christ spoke about his rejection and his suffering and his death, he was so he immediately took Christ aside. और यहाँ पर जब यीशु मसीह अपने दुखों के बारे में, अपनी तिरस्कार या उसको जो क्रूसित किया जाएगा उसके बारे में बात किया, तो तुरंत ही पतरस यीशु मसीह को वहां पर अलग से बात करता है। He says, God forbid it, Lord. वो कहता है कि पतरस ने उसे अलग जाकर कहा कि प्रभु ऐसा कभी ना होगा। This shall never happen to you. ऐसा प्रभु तुझ पर कभी ना होगा। But Jesus turned and said to Peter, get behind me, Satan, you are a stumbling block to me. 23 वचन में फिर उसने पतरस से फिरकर कहा, शमौन, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। You are setting your mind on God's interest, you are not setting your mind on God's interest but man's. क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। So that is why it says here, setting your minds on things above, not on things of the world. और यही वहां पे कहता है कि परमेश्वर की बातों पर हमें मन लगाना है, न कि जो संसार की बातें उस पर। And if I have set my mind on things above or things of God, then I can be ready to suffer for God. और यदि मैंने मन को परमेश्वर या ऊपर की बातों को, स्वर्गीय बातों के ऊपर लगाया है, तो मैं किसी भी दुख उठाने के लिए तैयार रहता हूँ। Then I will be ready to take up the cross because that is the way God has chosen for me. और तब मैं उस क्रूस को उठाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसी मार्ग को मेरे लिए तैयार किया है या चुना है। So we cannot build the church by human psychology. और इसलिए हम मनुष्य के तत्व ज्ञान से या कथा कहानियों या उसके ज्ञान से हम कलीसिया का निर्माण नहीं कर सकते। Only by taking up the cross I can build the church. और केवल अपने क्रूस को उठाने के द्वारा ही मैं कलीसिया को बना सकता हूँ। And that is why Jesus said immediately that if anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross and follow me. 24 वचन में यीशु तुरंत वहां पर कहता है अपने चेलों से, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। That means I have to deny my own will and my own convenience when God's interest is matters.
और जब परमेश्वर का जो उद्देश्य है या उसकी महिमा की बात आती है तो मैं अपने आप को तैयार रखता हूं कि अपने स्वयं को या अपने आप का इनकार या अपनी सुविधा या उन बातों को इनकार करने के लिए। That is why in verse 5, Colossians 3:5 says, therefore consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, greed, which amounts to idolatry. और इसलिए कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय के 5 वचन में कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर रहता है, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। And then again in verse 8 it says, but now also put them all aside, anger, wrath, malice, slander, abusive speech from your mouth, and do not lie to one another, since you have laid aside old self with its evil practice. और वचन 8 में कहता है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। This is part of taking up of cross, और ये क्रूस को उठाने का एक भाग है, where I deny myself and my flesh desire to anger, wrath, malice, slander, and abusive words. जहां पर मैं अपने स्वयं को, अपनी स्वयं की इच्छा का इनकार करता हूं, जो कि क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, गालियां मुंह से, ये सारी बातें उसमें आती है। Without the cross, I cannot deny this fleshly desires. और क्रूस के बिना मैं है ये शरीर की जो लालसा है उसका इनकार नहीं कर सकता। But I have to take my stand that I am dead with Christ. और मुझे ये निर्णय लेना है कि मैं पूरी रीति से मसीह के साथ मर चुका हूं। And that is how we build the church. और इसी प्रकार हम कलीसिया को बनाते हैं। And then it says in verse 10, put on the new self, which is being renewed to the true knowledge according to the image of the one who created him. और वचन 10 में कहता है आगे, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। That means this new man is being renewed according to Christ, according to the one who created is Christ, and I'm renewed by looking at Christ. और जैसे जैसे मैं यीशु मसीह की ओर देखते जाता हूं, उसके द्वारा मेरा जो मनुष्यत्व भीतरी जो है वो नया होते जाता है। And verse 11 says, this is a very important verse 11 for the church. और कलीसिया के लिए 11 वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये वचन है। When we say renewed in our mind, so what is that renewal? और हमारे मन में नए हो जाना, मनुष्यत्व में नए होना, उसका अर्थ क्या है? A renewal in which there is no distinction between Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free man, but Christ is all and in all. 11 वचन में कहता है कि उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। So if I am really renewed, yeah, यदि सच में मेरा नया मनुष्यत्व मेरे अंदर नया हो जाता है, मेरा मनुष्यत्व, that means I should not have a distinction between Greek or Jews. That means I don't have a distinction between different people. और तब ऐसा होगा कि मेरे कोई भी लोग जो है, यहूदी हो या कोई भी दूसरे लोगों के बीच में मैं कोई अंतर नहीं करूंगा या फर्क नहीं करूंगा। It doesn't matter to me whether somebody is rich or poor. और इससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ेगा कि वो गरीब हो या फिर वो धनवान हो, or somebody is very civilized or uncivilized. और बहुत ही जो आधुनिक हो या बहुत ही पुराने उसके ख्यालों का हो, or somebody is educated or uneducated. और कोई बहुत ही पढ़ा लिखा हो या कोई अनपढ़ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। If I have seen Christ who is all and in all, then I will not have a distinction between them. और यदि मैंने मसीह में सब कुछ और सब में वो इस प्रकार देखा है तो मैं किसी बात में कोई फर्क या अंतर नहीं करूंगा। So that is the renewal of ourselves when we come to Christ. और जब हम यीशु मसीह के आते हैं तो यही नवीनीकरण हमारे अंदर होता है। And I was also thinking about in verse 14. और 14 वचन में मैं सोच रहा था, beyond all these things put on love, which is the perfect bond of unity. और 14 वचन में कहता है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कमरबंद है बांध लो। And when we say about the church, it should not just start with the church, it should start with my family. और जब हम कलीसिया के बारे में बात करते हैं तो उसकी शुरुआत कलीसिया से नहीं बल्कि उसकी शुरुआत परिवार से होती है। So if husband and wife can be united in love, then they can build the church. और यदि पति पत्नी प्रेम में एक दूसरे के साथ एक हो पाएंगे तभी वे आगे बढ़कर कलीसिया का निर्माण कर पाएंगे।
That is why after this passage, immediately in verse 18, 19 and 20, 21, it talks about family. इसी वचन के भाग के आगे हम देखते 18 से 21 वचन में परिवार के संबंध में ये वचन बात करते हैं। Even in Ephesians, we read about church, and it's also immediately talks about family and church together. इफिसियों की पत्री के अंदर भी हम कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, उसके तुरंत बाद हम परिवार यानी कि कलीसिया और परिवार दोनों साथ में उस बारे में बात करता है। So if the families in the church are not strong, then the church cannot be strong. और यदि कलीसिया में पाए जाने वाले परिवार यदि मजबूत नहीं है तो कलीसिया वहां मजबूत नहीं हो पाएगी। So if husband and wife cannot come together in unity, then they cannot build the church. और यदि पति पत्नी एक साथ एकता में नहीं आ सकते हैं तो वो कलीसिया का निर्माण नहीं कर सकते। And something which Jesus also spoke in chapter Matthew 16. और यीशु मसीह ने भी इस संबंध में इसी प्रकार कहा मत्ती उसके 16 अध्याय में। In verse 18 it says, the gates of Hades will not prevail or overpower it. और यहाँ पे लिखा है कि और अधोलोक के फाटक उस पर विजय या प्रबल न होंगे। I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. वो आगे कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। And whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। I think in Matthew 18, it says again in verse 19, if two of you agree about anything that they may ask, it shall be done for them by my Father who is in heaven. 19 में इस प्रकार आगे कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन हो तो वो मेरा पिता की ओर से जो स्वर्ग में उसके लिए हो जाएगी। If you read 18th verse, it says, truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. और 18 वचन में कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पर बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। So to exercise this authority, Jesus says that two people should agree on earth. और इस अधिकार को काम में लाने के लिए दो व्यक्तियों को संसार या पृथ्वी के ऊपर एक होना जरूरी है। And that can be husband and wife. और वो पति और पत्नी हो सकते हैं। Where they can be united in spirit and pray to God for some situation. और वहां पर आत्मा में दोनों पति पत्नी एक होकर किसी परिस्थिति के लिए वो प्रार्थना कर सकते हैं। That means they both have a desire to honor God and to lift His name. और यहाँ पर दोनों पति और पत्नी को परमेश्वर का आदर करने की दोनों में इच्छा होती है। And both of them have forgiven everyone. और दोनों ने एक दूसरे को माफ किया है। And forgiven everyone. और हर एक को माफ किया है। And they have a good conscience towards God and man. और परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति भी एक अच्छा विवेक उनका है। And when they come together in prayer, there is a lot of authority they have. और जब वो दोनों एक होकर प्रार्थना में एक होते हैं तब बहुत सारा अधिकार उन्हें प्राप्त होता है। That is why Jesus said that two should agree on anything and they have the power to bind Satan's activities. और इसलिए यीशु ने कहा कि दो जन हैं वो एक साथ सहमत होकर एक होना है ताकि वे शैतान के कामों को संसार के ऊपर बांध सके। And one more thing which I wanted to say is from Romans chapter 12. रोमियो 12 अध्याय से और एक बात मैं बांटना चाहता हूँ। Romans chapter 12 from verse 3. उसके तीसरे वचन से It says, for through the grace given to me, I say to everyone among you not to think more highly of himself as than he ought to think, but to think so as to have a sound judgment. और 3 वचन में कहता है क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया वैसा ही सुबुद्धि के साथ समझे। So that is the basis on what we can build the church. और यही एक आधार है जिसके आधार पर हम मसीह की देह को निर्माण कर सकते हैं। So if I think that I am something, I am somebody, I don't need anyone, I cannot build the church. और यदि मैं सोचता हूं कि मैं कुछ खास व्यक्ति हूं, विशेष व्यक्ति हूं, मैं कुछ बन चुका हूं, तो मैं तब वहां कलीसिया का निर्माण नहीं कर पाऊंगा। If I recognize that I have a need for my brother,
and I cannot complete the task without my brother. और And I'm, yeah. और यदि मैं इस बात को जान जाऊंगा, समझ जाऊंगा कि मुझे मेरे एक भाई की जरूरत है, उसको इस काम को पूर्ण करने के लिए मुझे इस भाई की जरूरत है, उसके बिना मैं नहीं कर सकता। That is how we can build the church. और इसी प्रकार हम कलीसिया का निर्माण कर सकते हैं। Because in verse 4 it says, for just as we have many members in one body and all members do not have the same function. और 4 वचन में कहता है, क्योंकि जैसे हमारी देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही जैसा काम नहीं है। So we have different members in the body. और हमारी देह के अंदर अलग-अलग अंग हैं। And they don't perform all the same functions. ये सारे अंग जो है वो एक ही काम नहीं करते हैं। And I recognize that, and I know that every member needs the other member. और इस बात को मैं जान जाता हूं ये कि एक अंग जो है दूसरे अंगों की उससे जरूरत पड़ती है। And in verse 9 it says, let love be without hypocrisy. और 9 वचन में कहते कि प्रेम निष्कपट हो। And in verse 10 it says, be devoted to one another in brotherly love. और एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। Yeah. So in Hindi it is also clear when it says be devoted to one another in brotherly love. और यहाँ पे लिखा है कि भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे के साथ हम समर्पित रहे। Yeah. So I have devoted myself to Jesus, but have I devoted myself to the brotherly love? और यहाँ पर मैंने अपने आप को मसीह यीशु को भी समर्पित किया है, लेकिन उसके साथ साथ भाईचारे का प्रेम जो मेरे भाई के लिए, उसके लिए भी अपने आप को समर्पित किया है। Do I have a devotion for that? और क्या उसके लिए मेरे अंदर कोई समर्पण है? So that is what it says here. और यहाँ पर वो वही कहता है। And one more thing it says here is rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. और यहाँ पे लिखा है कि जो आनंद करते उनके साथ आप आनंद करो और जो रोते हैं उनके साथ आप विलाप करो। That means there should not be a spirit of jealousy in the church. और इसका मतलब यह है कि कलीसिया के अंदर जलन की, ईर्ष्या की आत्मा का कोई स्थान नहीं है। That means if somebody is honored, I need to rejoice with that person. इसका मतलब अगर किसी का आदर हो रहा है, इसके साथ मुझे भी उसके साथ आनंद करना चाहिए। If I am not able to do that, I should ask God to help me to do that. और यदि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे परमेश्वर से मदद को मांगना है इससे करने के लिए। And one thing which I noticed in the area of jealousy is in verse 21 it says, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. और जलन के संबंध में एक और बार मैंने देखी है जो 21 वचन में लिखी कि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। So when we have to fight against jealousy, I have to go and appreciate that person so that I can overcome that evil jealousy inside. और यदि मुझे इस जलन के ऊपर विजय को पाना है तो उस व्यक्ति के पास जाकर मुझे उसकी सराहना या तारीफ करनी है ताकि इस बुराई, इस बात के ऊपर मैं विजय पा सकूं। So we overcome evil not by just avoiding evil but by doing good. और हम बुराई को किस प्रकार हराते हैं? बुराई का नजरअंदाज करके नहीं, लेकिन भलाई को करके हम बुराई को हराते हैं। And also in Romans 15, it is a very good chapter on how we need to build each other up in the church. और रोमियो 15 अध्याय जो है कलीसिया के अंदर हमको कैसे एक दूसरे को बनाना है या उनके बोझ को उठाना है, उसके बारे में एक अच्छा अध्याय है। It says, now we who are strong ought to bear the weakness of those without strength. और एक वचन में कहता है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं में सहायता करें। And there are a lot of people in the church, and we all have some weaknesses. और कलीसिया में बहुत सारे हम लोग हैं और हमारे हर एक के जीवन में अंदर कोई न कोई निर्बलताएं हैं। And even we know when we are married as husband and wife, we have a lot of weaknesses. और हम जानते हैं इस बात को, जब पति पत्नी के संबंध में हमारा विवाह होता है तो हमारे अंदर बहुत सारी कमियां या कमजोरियां होती है। And unless I learn to bear with that and take the cross and suffer for that lovingly, I cannot build the church. और जब तक मैं प्रेम में होकर, जब तक मैं उसको नहीं सहूंगा उन बातों को, तब तक मैं कलीसिया का निर्माण नहीं करूंगा। That is why it says in verse 5, now may the God who gives perseverance and encouragement grant you to be of the same mind with one another according to Christ Jesus. और 5 वचन में कहता है कि धीरज और प्रोत्साहन का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। That means God who was so patient and who has encouraged me so many times, grant me that I will be of the same mind with other people in the church.
और इसी प्रकार वे कहते हैं परमेश्वर जिसने मेरे प्रति इतना धीरज दिखाया, मुझे इतना प्रोत्साहन किया है, उसी प्रकार से मैं कलीसिया के अंदर अन्य भाइयों के प्रति भी धीरज को दिखा सकूं और उसी प्रोत्साहन को बांट सकूं। And verse 6 says, so that with one accord and with one voice we may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. और 6 वचन में आगे कहता है ताकि तुम एक मन और एक स्वर होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। So if I'm gossiping about some brother at home and I'm coming to church and I'm together praising God, that is not one voice and one accord. और यदि मैं घर के अंदर होकर किसी की गपशप कर रहा हूँ, किसी के पीठ के पीछे बुराई कर रहा हूँ और फिर कलीसिया में आकर परमेश्वर के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, तो वहां पर मैं एक स्वर एक मन का नहीं हो रहा हूँ। But if at the same time during the week I can pray for some people, I can be burdened about the church, and I have a burden for different people, and I come and I have a love, then I praise God. It will be one accord and one voice. लेकिन उसके साथ साथ अगर सप्ताह के दरमियान अगर किसी भाई और बहनों के लिए मेरे अंदर बोझ है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और फिर मैं रविवार में कलीसिया में आकर परमेश्वर की स्तुति करता हूँ प्रेम में होकर, तब हम वहां एक मन या एक स्वर हो रहे हैं। That is why it says in verse 7, therefore accept one another just as Christ also has accepted us to the glory of God. और 7 वचन में कहता है कि जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी दूसरे को ग्रहण करो। So have I accepted the people just as Christ has accepted me? और जैसे मसीह ने मुझको अपनाया है, क्या मैं वैसे ही लोगों को अपनाता हूँ, ग्रहण करता हूँ? Christ did not accept me after I changed. और मेरे बदलने के बाद मसीह ने मुझे ग्रहण या अपनाया नहीं है। When I was in my sin, when I was enemy of Christ, at that time Christ died for us. और जब मैं पाप में था और जब मैं परमेश्वर का शत्रु था, तब यीशु मसीह मेरे लिए मरा। And he loved me first. और उसने सबसे पहले मुझसे प्रेम किया है। And that is what I need to do for others. और यही मुझे औरों के लिए भी करना है। I just want to turn to 1 John chapter 1. पहला यूहन्ना पहला अध्याय। It talks about fellowship there. और यहाँ पर वो संगति के बारे में बात करता है। In verse 3 it says, what we have seen and heard we proclaim to you, so that you too may have fellowship with us, and indeed our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। So John says that he has fellowship with God and His Son Jesus Christ. और यूहन्ना यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ उसकी सहभागिता या संगति है। And he wants fellowship with one another. और उसके साथ साथ वो और लोगों के साथ भी, आसपास के लोगों के साथ भी उस संगति को चाहता है। That means that vertical fellowship with God and also fellowship with one another. और वहां पर वो जो सीधा जो उसका संबंध पिता के साथ, उसको भी वो चाहता है, और उसके साथ जो आड़ा जो उसका जो संबंध लोगों के साथ है, वो संगति भी वो चाहता है। The church can be built only when we have both these. One is the vertical fellowship, which is the first thing, and on that, based on that, we have fellowship with one another. और ये दोनों चीजों का होना बहुत ही जरूरी, यदि हम कलीसिया का निर्माण करना चाहते हैं, तो वो जो सीधी जो लकड़ी है, जो परमेश्वर के साथ मेरी संगति, उसी के ऊपर में जो आड़ी जो लकड़ी औरों के साथ संगति या सहभागिता को बनाए रख सकता हूँ। In verse 7 says, but if we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another. और 7 वचन में कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। So if I am walking in the light, that means I'm just knowing what God wants to speak to me, and whatever correction is there, I'm taking it. और यदि मैं ज्योति में चलता हूं तो जो परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है उससे मैं जानना चाहूंगा, और जो सुधार मेरे जीवन में लाना चाहता है वो मैं लाना चाहूंगा। I'm living with a good conscience before God. और मैं परमेश्वर के सामने एक अच्छे विवेक के साथ जीवन जीता हूं। It says then automatically I will have fellowship with one another. और फिर अचानक मतलब उसका परिणाम स्वरूप हम है स्वाभाविक रीति से एक दूसरे के साथ सहभागिता या संगति रखेंगे। And finally, one more thing I just want to say from 1 John 4:20. पहला यूहन्ना 4:20 से मैं और एक बात कहना चाहता हूं। Says, if someone says I love God and hates his brother, he is a liar. यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है।
For the one who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. और जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। So here I want to emphasize the word which says whom he has seen. और यहाँ पर मैं उस शब्द के ऊपर भार देना चाहता हूँ कि जिसने अपने भाई को देखा है। That means whom I see regularly if I cannot love that brother. मतलब जिस भाई को निरंतर मैं देखता हूँ अपनी आंखों से, उसको प्रेम नहीं कर पाता हूँ। That means the brother or sister who is in my locality, around my place, if I cannot love those people, इसका मतलब मेरे आसपास, मेरे विस्तार में, मेरे आसपास के जो लोग हैं, उनको मैं नहीं देख पाता, उनसे प्रेम नहीं कर पाता, then I cannot love God. तो मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाऊंगा। Because it's easier to love someone from very far away. बहुत आसान होता है कि जो बहुत दूर रहते उनसे हम प्रेम कर सके, But God wants us to love the brother whom we can see every day. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस भाई से प्रेम करें जिसे हम निरंतर प्रतिदिन देखते हैं, देख पाते हैं। Amen. आमीन।